live another day. We'll make a statement to the world that we're here to stay. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. It's time to be the hero. Hi people, welcome back to Lost and Found, and first we're extremely sorry to be back after such a long break. These are just starting troubles, and we will try and be more consistent going forward, we promise. Okay, so now we all know what Lost and Found is all about. It's about finding extraordinary stories in humble places and common faces which are lost in the crowd, which are all around us but we don't seem to notice them. So today we have another incredible story from Old City, Hyderabad, King Koti actually, and it's the story of Bapu Sangeet Vidyalaya, translated in English, Bapu Music School, established in 1942, as you can see on the board, which is 80 years old, right? It was started by this individual called Jating Rao, and the legacy has been kept alive by his grandson, and Jating Rao is of course no more. And this is the first ever music school of Hyderabad, at least of Hyderabad, that we can say. Before this, the concept of music schools did not exist in Hyderabad. You had to find a guru, a teacher, and pursue them and convince them to take you in as a student. And this was the first school that allowed people from all walks of life to come in and learn music. Initially when they started, only classical instruments of course, but today they teach both classical and western instruments, a lot of them, like a huge bunch of them. And the fees when they started back in the day 80 years ago was incredible, unbelievable, you can't even believe it. It was $0. And today after 80 years it's $1,500 a month, which is about the money that we all pool in when we go out to party with our friends on Saturday night. So for that amount of money you can learn a music instrument at a place like Bapu Sangeet Vidyalaya, Bapu Music School in King Koti, Old City, Hyderabad. So let's go in and find out more about the place. Cheers. What's your name? Sahasrat. Sahasrat. What are you learning? Drums. Since when are you learning drums? From 2021. 2021 से आप ड्रम सीख रहे हो, इधर ही आके सीख रहे हो. कैसा लग रहा है सीखना? अच्छा लग रहा. रोज आते हो? रोज. बड़े होके ऐसे बजाना चाहते हो, ऐसे प्रॉपर एकदम? हाँ, ड्रम्स के अलावा और कुछ सीखते हो या सिर्फ ड्रम सीखते हो? ड्रम्स. तो ये पवन है जो जटिंग राव जी के पोते हैं, और इन्होंने और इनके भाई प्रवीण ने, बड़े भाई प्रवीण ने मिलकर इस लेगेसी को ज़िंदा रखा है, इस बापू संगीत विद्यालय को जो 80 साल पुराना है. तो क्या सोच के किया, मतलब कि अभी मतलब ऐसे कुछ इमोशनल डिसीजन था कि अरे दादा ने शुरू किया है तो कंटिन्यू करेंगे, या फिर म्यूज़िक को लेकर आपका भी कुछ है या क्या? तो बस सुनते थे पिताजी से, बस म्यूज़िक को स्प्रेड करना था उनका मेन जो था मोटिव लगाने का. बस म्यूज़िक, जब वो टाइम पे म्यूज़िक एकदम चीप दिखते थे, अरे क्या तो म्यूज़िक सीख रहा, कुछ बन बाद में म्यूज़िक सीख. अच्छा. ऐसा था, तो वैसा उनको इनक्रेज करने के लिए वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूट डाले. हाँ. बच्चे आए, सीखे और म्यूज़िक का वैल्यू मालूम करें. तो उन्होंने कहाँ से सीखा होगा? मतलब उन्होंने एक्चुअल उनके गुरु है, उनका नाम है बापू जी, जिसके नाम पे स्कूल है, स्कूल लगा है. वो यहीं पर पास में मंदिर के
पुजारी थे, उन्होंने सिखाते थे उनको। ओ, मंदिर के पुजारी थे थे, बापू, बापू। जो आपके दादा को सिखाते थे। सिखाते। वहां से सीखते सीखते आपके दादा को इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट है एक्चुअली, उन्होंने बिजनेस, उनका बैकग्राउंड, उनका बिजनेस था उनका, उनके जो पिताजी थे उनका ब्रेड का बिजनेस था। अच्छा। जो निज़ाम को सप्लाई करते थे, तो वो दुकान पे बैठे बोलते थे, वो लोग नहीं बैठते थे हमारे दादा। हाँ। तो उनको म्यूजिक का शौक था, तो जाना फ्री टाइम पे जाके म्यूजिक सीख के फिर आ जाना, फिर जाना फिर म्यूजिक सीख के आना, ऐसा था। तो आप सब जो अब सिखा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, और आपके बड़े भाई, तो आप लोग भी सेल्फ टॉट हैं मतलब? या हम लोग ऐसे ही मतलब उठा के बजाते बजाते हर चीज सीखी है, या फिर कई एक्चुअली हम लोग का बचपन का खिलौना ही म्यूजिक है। हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट से ही खेले कार हैं? नहीं खेले ना, किसी से खेले। हम लोग रिमोट कंट्रोल instrument वाली से- गाड़ी से नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट से खेले हम लोग, यही पे सीखे, पिताजी से सीखे जो भी है। हाँ, अगर कुछ चीज़ होना है तो बाहर जाके कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ जो है वो थोड़ा बहुत वो सीखे उसकी हम लोग, आपको हेल्प बाहर से मिल जाती हाँ, थी, लेकिन music आप college तो मिल पैदा हुए बस म्यूजिक में। पहला इंस्ट्रूमेंट खिलौना जो पकड़ा है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके ओके, तो अभी 80 साल में सिर्फ 1500 रुपये हुआ है फीस महीने का। हाँ, तो ये कुछ दिक्कत नहीं आती कि मतलब ऐसे इकोनॉमिकली घर में ऐसा नहीं लगा कि यार यही है अगर सब कुछ, तो इतने पैसों में कैसे फैमिली गुजारा कर रही है? लेकिन हमारे अभी पिताजी हमारे अभी नहीं है, तो उनका एक ही कहना है कि अपना इंस्टीट्यूट जो है पुराना है, फीस बढ़ाओ लेकिन रीजनेबल, ताकि मिडिल क्लास भी आके सीख सके। कि हाँ। इतना कमर्शियल मत करो कि आम खास पब्लिक नहीं आ सके, वो तो फीस नहीं पड़ सके, तो इसलिए Okay. मिनिमम फीस, ज़्यादा बड़ा है फीस तो हम लोग घर में लड़ाई होती थी। ओके, तो मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? मतलब मेरे को दिख रहा है अभी 2 बच्चे तो बैठ के ड्रम सीख रहे हैं, और अभी जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट शुरू हुआ खाली 2 इंस्ट्रूमेंट से, एक हाँ। हुआ तबला, एक है हारमोनियम। अच्छा, और vocal। हारमोनियम और तबला, और ये तो माशाल्लाह बहुत हाँ। पुराने दिख रहे हैं हाँ। भाई, बहुत ही मतलब पता नहीं कौन से जमाने के हैं ये, और लेकिन चल रहे हैं। चल रहे हैं अभी, कुछ Okay. खराब भी है बट चल रहे हैं। Amazing। तो वो वहाँ से शुरू हुआ। अब उसके बाद जैसे जनरेशन चेंज होते गया, तो डिमांड है गिटार सीखने के लिए, बच्चे पूछे, तो पिताजी 70s में गिटार शुरू करे। फर्स्ट एक पिक्चर था हरे राम हरे कृष्णा, जी, उससे वो हिप्पी कल्चर ऐसा आया था, दम तो सब लोग को जीना। क्रेज होगा कि हमको भी गिटार सीखना है, तो उस हिसाब से गिटार इंट्रोड्यूस करे। फिर जैसे जैसे फिर बोले हारमोनियम था, हमने कीबोर्ड होना हमारे को, तो कीबोर्ड भी आया, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो 70s वाले म्यूजिक में कीबोर्ड भी आया, बप्पी लहरी का थोड़ा वो आया, वो सब आया। तो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए। जेम्बे भी उधर से ही थोड़ा बहुत आया बॉलीवुड में। उसके बाद फिर अभी जेम्बे है, कहून बोल के एक नया इंस्ट्रूमेंट, कहून, हाँ, अभी बहुत लोग सीख रहे हैं वो। ड्रम्स तो क्रेज है पहले से, तो ड्रम्स भी। हाँ, फिर हम लोग ड्रम्स में ट्रिनिटी कॉलेज से भी हम लोग एग्जाम बिठा रहे हैं, ड्रम्स नहीं कीबोर्ड गिटार सबके लिए। मतलब यहाँ पे प्रिलिमिनरी कोर्स करके हाँ, फिर ट्रिनिटी के कॉलेज लिए में अभी आप- क्या है, सब लोग ट्रिनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, ट्रिनिटी का एग्जाम है क्या, ट्रिनिटी का एग्जाम, तो इस हिसाब से हम तो लोग वो आपने भी भी एसोसिएट हाँ ट्रिनिटी कर लिया है ट्रिनिटी कॉलेज से, और यहाँ से फिर बच्चे वहाँ का एग्जाम देके Exam पास देके होके pass। सर्टिफिकेशन पास। जी। ओके, सो ये रितिका जी हैं, और ये भी बापू संगीत विद्यालय से म्यूजिक सीख रही हैं, गिटार सीख रही हैं। सो रितिका जी कब से सीख रही हैं आप गिटार? लास्ट ईयर फरवरी से सर। लास्ट ईयर फरवरी से, बीच में थोड़ा गैप आया है, कोविड आया है ना, हाँ, इसलिए थोड़ा गैप है बीच में। नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर से कंटिन्यू चल रहा अभी। तो ये गिटार सीखेंगे बोल के इंस्पिरेशन किधर से आया रितिका जी? एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए आए हैं, ओके, बच्चा उनके भी लिए सीखता है? 1 आवर वेट करना कंपलसरी, वो टाइम छोड़ना बोल के मुझे भी सीख रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो वो आपका बेटा क्या सीखता है? सॉरी, व्हाट आपका बेटा क्या सीख रहा है? ड्रम्स सीख रहे हैं। ड्रम सीख रहा है, तो वो 1 घंटा में वेट करके क्या करना करके आप भी गिटार सीखना शुरू 1 कर आवर दिए? वेस्ट होता ना, इसलिए मेरे को भी इंटरेस्ट आया है 1 आवर बैठ के क्या करना बोल के सीखने के लिए सोचे। लेकिन कभी विजुअलाइज किया था ऐसा स्कूल टाइम में कि नहीं, गिटार नहीं, ऐसा उनके कुछ लिए नहीं? आए, मेरे को भी इंटरेस्ट है सीखने के लिए, Okay. इधर देखने के बाद आए इंटरेस्ट है। ओके, तो अभी आप लास्ट फरवरी से आप बोल रहे हो सीख रहे हो, यस, तो अभी हमको बताओ कि आपने अब तक क्या सीखा है गिटार पे? कुछ भी, आपकी मर्जी, जस्ट बेसिक ओनली। एनीथिंग, दिस इज अ स्कूल, सो ओके, 1 सेकंड। फैंटास्टिक। ओके, Okay, थैंक so यू। don't be so conscious, you're doing really great. ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। Yeah. Okay, so that beautiful tune that Ritika just played was Choti Si Aasa, Nanni Si Aasa. This beautiful composition in this film Roja by A.R. Rahman. Do you remember? Excuse my singing, but then yeah, that was the tune, and it's so
दिस इज़ रितीश राज, रितिका जी के बेटे हैं, जिनके लिए वेट करते करते रितिका जी ने भी गिटार उठा लिया और इतना अच्छा ट्यून बजा रही हैं। तो अब ये ड्रम सीख रहा है और ये ड्रम्स दिखा के बजाएगा, नहीं मतलब बजा के दिखाएगा, राइट। वो ऐसा फिल्म्स में दिखाते ना, ऐसा फुल ऐसा एक बहुत पैशनेट म्यूजिकल सीन में ऐसा स्टेज पे वो जो भी रहता ड्रम्स पे लाइक फुल स्वेट होके ऐसा बाल हिला के ऐसा पूरा ensemble ऐसे बजाता। आई वांट ट्राई दैट बिकॉज आई विजुअलाइज माई सेल्फ डूइंग दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई नो आई एम गोना साउंड लाइक शिट बट आई एम गोना डू इट नेवरदलेस। Hi guys, my name is Karunya. I'm from Babu Sangeet Vidyalaya. Now I'm going to play which I've learned till now. Thank you. So that was the simple and yet such an inspiring story of Bapu Sangeet Vidyalaya. Like Jatin Rao ji जिन्होंने ये स्कूल शुरू किया 1942 में, like he started the school out of his own will, out of his own passion, like you know, just with sheer will and sheer passion in his heart for music. And मतलब like his grandson told us that वो किसी मंदिर के पुजारी के पास सीखते थे म्यूजिक, and क्योंकि उनको अपने पापा की दुकान पे नहीं बैठना था, he ran away from there and he started this school for others to come and learn, and that is so awesome. And then we also, you know, bumped into, you know, the story of a mother who, while waiting for her son's class to get over, picked up an instrument herself and started learning guitar, and she plays it so beautifully. So anybody can learn, and there is no age to start, and there is no time to start, and you know, there is no gender in this. This is the universal language, and anybody can learn it. And Bapu Sangeet Vidyalaya has been here for 80 years, and I'm sure is going to be here for much more time to come. I hope it doesn't vanish, you know, somewhere into the bright future, which is so blindfolded. And yeah, so also if you're interested in joining our crew behind the camera and also in front of the camera on, you know, more such story walks,
with Lost and Found, you're more than welcome. Please send us a message and you can join us behind the camera or in front of the camera. And also, like, share, and subscribe. Otherwise,